Hello friends, how are you? Welcome to the Partner Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Biosphere and it is a limit. There is a first point for this chapter and there is a in a simpler term is a biosphere refer to the narrow zone. It is a similar term is a biosphere refer to the narrow zone of the earth is which all life for exist. The all life is from a exit. Do you know why the life become a possible? It is a zone. There is a most important question here. Do you know why the life become a possible in the zone? It is because this zone in which all the three essentially things which is required as a substances of life are found to the right mixture. There are the land, lithosphere, air is atmosphere, and the water is hydrosphere. The life is a possible because here present of three types of mixture here. The first air, land. Second air, the air. And third air, water. What? The geographical is a term here. Lithosphere is a land, and the atmosphere is the air, and the water is a hydrosphere. In other words, this is a narrow zone is the place where a lithosphere, atmosphere and hydrosphere is a meet. We must be appreciate that how to narrow this zone is. It extends vertically into there is atmosphere to about 10 kilometer downward into the ocean to depth about a 10.5 kilometer and into about a 27,000 feet of the earth as a surface where a maximum living organism have been found. There is some life form which are found in stem means the condition. Two examples of this type are algae and thermophil. The algae, which is supposed to be one of the earliest form of life, can exist even in the most hostile environment such as a frozen Antarctica. The other extremely side is the thermophils. Heat live is a loving is a bacteria, usually is a habitat deep sea, baconic, and the one having to temperature of more than 300 Celsius. In fact, this bacteria can be not survive in a temperature below the boiling point. That is the most important. This bacteria does not survive here a boiling point. That is important here. The situation was not like this when the life form began about 700 million years ago. It is believed to has been to only a narrow discordance has a land is composing to the only shore is a part of the oceans. As per the term of the expansion of the area in the terms of the ability of life form. It can be predicted that maybe after a few millions years, the expanses of the biosphere get extended is below there is upper stratosphere. And this shows that the biosphere has been to the involvings over the time. Till now we have discussed about their vertically expansion, but horizontally there is a biosphere cover there is an entire globe. So the life may be not be possible in some of the hottest and the coldest part. There is important here. There is not a life may be possible in some hottest and the coldest of part. However, most living things are confined to be a narrow band, which is a pyramid. There is a capture of the solar energy. Through their process of the photosynthesis, which is similar for any organic life, and this narrow regions extend from about 180 to 200 feet below the sea level to the highest value of snow line in a tropical and subtropical mountain range. They say they are 6,550 meter above the sea level. Where it is extend beyond this is the line life from become very limited. There is an important part here. There is the this narrow region extend from about 180 to 200 feet below the sea level to the highest value of the snow lines in a tropical and subtropical mountain range. When you stand to the beyond, this is a line life from become very limited, and there is a most important point here. Here show the most important diagram here biosphere. Biosphere here show in the diagram there is a center point. There is a covered with the lithosphere, atmosphere and hydrosphere.
There is a most important diagram for the exam view. Note down, and there is a biosphere is shown in this center point. हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जैव मंडल, और जैव मंडल के अंतर्गत जो है हमारा पहला टॉपिक आया है जैव मंडल था उनकी इसकी सीमाएं। देखिए जैव मंडल है और जैव मंडल की कितनी सीमाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जैव मंडल होती क्या है और जैव मंडल के जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं और जैव मंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन के भरमार है, लेकिन कहते हैं क्वेश्चन जब तक हम समझें तब तक जो है हमें आंसर के वो ही समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते हैं उनको आंसर भी सही से याद नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आंसर जो है बेखूबी जो है आसानी से कर सकते हो। कहते हैं अगर जैव मंडल है उसकी सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर साफ कर देता है कि सीधे साधे शब्दों में जैव मंडल पृथ्वी की वह सक्रिय पट्टी है जिसमें सभी प्रकार के जीव विद्यमान हैं, यानी जैव मंडल में ही जीवों का जो है रहना संभव हुआ है और जैव मंडल में ही जीव जो है रहते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है कि आखिर इसी पट्टी में जीवन संभव क्यों हुआ। कहते हैं जीवन संभव होने के लिए 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, एक भूमि, ठीक है, जल और वायु। तो क्या इसी में पाया जाता है ये? तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बच्चे इंटरेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? यह इसलिए क्योंकि यहाँ वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों वस्तुएं उचित मात्रा में मिलते हैं। अब 3 वस्तुओं कौन है? तो 3 वस्तु है भूमि, वायु, जल। अगर हम इसको भौगोलिक जो है शब्दों में कहें तो स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। तो यही 3 कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जैव मंडल यानी जीव जहाँ रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं, उसमें जीव जंतु का रहना संभव हुआ है। ठीक है, मैं अब दोबारा बता दूं कि ये 3 जो है महत्वपूर्ण जिसकी वजह से जीवन संभव हुआ है, भूमि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, वायु जिसको हम वायुमंडल कहते हैं और तीसरा जो है जल यानी जल मंडल। दूसरे शब्दों में यह सक्रिय पट्टी वह क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलते हैं, जिसको जो है चित्र से भी हम प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। हम इन सक्रिय पट्टी का महत्व समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यह मंडल में जो है ऊर्ध्वाधर रूप में लगभग 10 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर कि वायुमंडल में रूप में ये लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह समुद्र में जहाँ लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से जो है लगभग जो है 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण है ये कि यह समुद्र में जहां लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं और विस्तृत भी हैं। जीवन के कुछ रूप विषय परिस्थिति में भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल जो है हम अलगाई कहते हैं और थर्मोफिलक। इस प्रकार के जीवन के 2 उदाहरण हैं। कहते हैं शैवाल जिस जीवन के पहले रूप से एक माना जाता था, कहते बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। दूसरे छोर पर जो है थर्मोफिलक ऊष्मा पसंद करने वाला है, यानी जीवाणु सामान्यतः जो है गहरे समुद्र में ज्वालामुखी रंध्रों में रहता है। अब देखिए ज्वालामुखी रंध्रों में किसी जीव का विकास करना संभव ही नहीं है, बट ऐसा हुआ है थर्मोफिलक के कारण। तो देखिए ये एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन गया ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है ये, और जो है इंट्रेंस टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जो उस उच्च तापमान पे रहते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई उच्च तापमान पर तो किसी का जीवित रहना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा है थर्मोफिलक जो है समुद्र में ज्वालामुखी के रंध्रों में रहता है, जहां तापमान लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। 100 सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्सियस में देखिए 300 कितना अधिक गर्म हो सकता है। ठीक है, वास्तव में जीवाणु जो है खतरनाक 0 से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं 100 सेल्सियस,
उस पे ये जीवाणु जो है जीवित नहीं रह सकता। इसके लिए कम से कम 300 से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प यहाँ पर बात थी, शायद आपको इसके बारे में पता हो। कहते हैं जब जीवन शुरू हुआ तब स्थिति ऐसी नहीं थी। कहते हैं जब जीवन का उत्पत्ति यानी बिगेनिंग हुआ लाइफ का पृथ्वी पर, तो स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा आज हमें मिला हुआ है। लगभग 7 अरब वर्ष पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक संक्रिय विच्छिन्न भूमि है जो महासागरों के उथल भागों के घेरे हुए है। जीवन के रूपों में उपलब्धता के संदर्भ में क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ हजार वर्षों बाद जैव मंडल का विस्तार ऊपरी क्षोभ मंडल से आगे बढ़ सकता है। और इससे पता चलता है कि जैव मंडल का समय के साथ विकास हो रहा है, यानी जैव मंडल का जो विकास है हो रहा है। अब तक हमने जो है जैव मंडल के ऊर्ध्वाधर विस्तार की चर्चा किया है, लेकिन क्षैतिज रूप से जैव मंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ये तो हम भी जानते हैं कि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन का पनपना संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो अधिक हम गर्मी सह सकते हैं, ना अधिक ठंड सह सकते हैं। तो ऐसे में जीवन का जो है विकास करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। कहते हैं अधिकतर जीवन एक सक्रिय पट्टी में सीमित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को जो है ग्रहण करती है, जो कई प्रकार के जैव जीवन के लिए आवश्यक है। और यह संक्रांत क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 180 से 200 फीट नीचे उष्मा तथा उत्क्षेपी कटिबंधीय पर्वत श्रृंखलाओं, यानी ये बात सही है कि समुद्र तल से जो है 6550 मीटर ऊपर में हम हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है। कहते हैं जब यह हिम रेखा के पार विस्तृत होता है तो जीवन के रूप में बहुत कम हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर डायग्राम में भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं को उजागर कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जैव मंडल को दर्शाया गया है। अब जैव मंडल जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ये कहते हैं तीनों तरफ से जो है विभिन्न स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से घिरा हुआ है, और बीच में जो है जैव मंडल का निर्माण करता है जहाँ पर जीव जंतु जो है जीवित रहने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम व्यू से है। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में और एग्ज़ाम तक जो है याद रखना चाहिए। और ये डायग्राम अगर आप शो करोगे तो एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस होगा और काफ़ी आपको अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स देने की कोशिश करेगा।